Good morning, students. I am Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School English teacher, and this is for class 5, lesson 3rd. This is the story of King Dushyant and Shakuntala. Dushyant, the king of the Kuru dynasty, ruled Hastinapur. He was a proficient administrator and a just ruler. Vidushka, his friend, was always by his side. दुष्यंत कुरु राज्य परिवार का राजा हस्तिनापुर में राज्य करते थे। वह एक कुशल प्रशासक और एक न्यायी राजा थे। विदुषका, जो उनका दोस्त था, हमेशा उनके पक्ष लिया करता था। One day, King Dushyant made a plan of hunting in the forest, so he went into the forest with a huge army. After great efforts, he shot an arrow at a deer, but the wounded deer ran away from his sight. एक दिन राजा दुष्यंत जंगल में शिकार खेलने का प्लान बनाया, इसलिए वह अपने विशाल सेना को लेकर के जंगल की तरफ कूच चल दिए। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने एक हिरन पर तीर चलाया, लेकिन घायल हिरन उनकी नज़रों से गायब हो गया। वह भाग निकला। He also started following the deer and reached an ashram. वह हिरन का पीछा करने लगे और पीछा करते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। There he saw a beautiful girl named Shakuntala nursing the deer, her pet. Shakuntala was born to the sage Vishwamitra and Apsara Menka. Menka had come at the command of the king of gods Indra to distract the great sage Vishwamitra from his deep meditation. वह हिरन का पीछा करते हुए आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसका नाम शकुंतला था, जो उस हिरन की मदद कर रही थी, सेवा शुश्रूषा कर रही थी, जो कि उसका पालतू पशु था। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र के घर जन्मी थी और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। यानी ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा के यहाँ जन्मी थी। मेनका भगवान इंद्र के आदेश पर महान ऋषि विश्वामित्र को ध्यान भटकाने के लिए आई थी, लेकिन ध्यान भटका न सके और उससे प्रेम मोह हो गया। King Dushyant profusely begged for her forgiveness for harming the deer and spent some time at the ashram. राजा दुष्यंत हिरन को चोट पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए बहुत ही विनम्रता से माफी मांगा और आश्रम में ही कुछ समय बिताया। Shakuntala's beauty was so captivating that the king fell in love with her. Shakuntala too was enchanted by his majestic personality. They married right there in the ashram. But as the king had to go to look after his kingdom, he told this to Shakuntala. At this, she was heartbroken, but she knew her husband's responsibility towards the kingdom. शकुंतला की सुंदरता, शकुंतला's beauty was so captivating, इतनी मनमोहक थी कि राजा उसके प्रेम जाल में फंस गया। शकुंतला भी उनके शाही पर्सनालिटी से, शानदार व्यक्तित्व से काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गई, जादू से मुग्ध हो गई। They married right there in the ashram, और वे आश्रम में ही शादी कर लिए, उसी समय आश्रम में शादी कर लिए। लेकिन
जो कि राजा को अपने राज्य की देखभाल करने के लिए जाना पड़ा, यह बात उन्होंने शकुंतला को बताया। इस पर शकुंतला का दिल टूट गया, लेकिन वह अपने पति की अपने राज्य के प्रति कर्तव्य को जानती थी, जिम्मेदारी को जानती थी कि उनके राज्य के प्रति क्या जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी थी कि प्रजा की सेवा करें। द डे ऑफ हिज डिपार्चर अराइव्ड, शकुंतला was in utter agony. Dushyant was also emotionally disturbed. When Dushyant left Shakuntala, he gave Shakuntala a royal ring as a sign of their love, promising her that he would return to her soon. The day of यानी प्रस्थान करने का समय आ गया। शकुंतला अत्यंत ही दुखी थी, अत्यंत ही दुखी अवस्था में थी। दुष्यंत भी भावनात्मक रूप से परेशान था। जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर गया, ही गेव शकुंतला, उन्होंने शकुंतला को अपने प्रेम के निशानी के रूप में एक राजशाही रिंग दिया, शाही परिवार का अंगूठी दिया। That he would return to her son, promising her, यानी वह अपने उससे वादा करते हुए कहा कि वह जो है शीघ्र ही उसके पास लौटकर आएगा। शकुंतला was so dispirited by Dushyant's separation. One day she was sitting in the garden and recalling her sweet memories with her husband, King Dushyant. In the meantime, a great sage Durvasa was passing through the same garden where Shakuntala was sitting under a banyan tree. She failed to notice the arrival of the sage Durvasa. She did not receive him with due respect. Sage Durvasa was famous for his angry behavior, so the short-tempered sage became furious and cursed her that the person she was thinking of would forget her. शकुंतला दुष्यंत की जुदाई से अत्यधिक दुखी थी, बहुत ही दुखी थी। एक दिन वह बगीचे में बैठी हुई थी और अपने पति के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों को याद कर रही थी। इसी बीच एक महान ऋषि दुर्वासा उस गार्डन से, उस बगीचे से होकर गुजर रहे थे, जब शकुंतला एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई उनके याद कर रही थी। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के आगमन को अनदेखा कर दिया। She did not receive him with due respect. वह उनका उचित सम्मान न कर सकी। Sage Durvasa was famous for his angry behavior. ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उस तुनक मिजाज ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के याद में वह खोई हुई है वह उसे भूल जाएगा। शकुंतला, still lost in her thoughts, did not realize what had happened, but Anusuya and Priyambada pleaded with the sage to calm down his anger and reduce the harshness of the curse. शकुंतला अभी भी विचारों में खोई हुई थी और उसे महसूस नहीं हुआ कि क्या हुआ, लेकिन अनुसुईया और प्रियमदा ऋषि से शांत होने का निवेदन की, अपने क्रोध को शांत करने का निवेदन की और श्राप की रुखाई को भी कम करने के लिए कही कि श्राप भी कम कर दें। Sage Durvasa felt pity for Shakuntala and said that on seeing the ring which was given by the king as a sign of his love, Dushyant would recognize her. ऋषि दुर्वासा को दुख महसूस हुआ, शकुंतला के लिए बहुत ही दुख महसूस हुआ
और कहा कि अंगूठी देखने पर, जो राजा के द्वारा प्रेम की निशानी के रूप में दिया गया है, उसे देखने पर वह दुष्यंत उसे शीघ्र ही पहचान लेगा। टाइम पास्ड एंड शकुंतला वंडरिंग व्हाई दुष्यंत डिड नॉट रिटर्न फॉर हर फाइनली सेट आउट फॉर द कैपिटल सिटी with her father and some of her companions. समय बीतता गया और शकुंतला दुष्यंत की एंड शकुंतला वंडरिंग, और शकुंतला सोच रही थी कि क्यों दुष्यंत उसके पास लौटकर नहीं आया। अंत में वह राजधानी की ओर अपने पिता और कुछ साथियों के साथ चल दी, यानी राजा की राजधानी की ओर अपने पिता और कुछ साथियों के साथ चल दी। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस रिवर बाय ए बोट। अट्रैक्टेड बाय द डीप ब्लू वाटर ऑफ द रिवर, शकुंतला रैन her fingers through the water. Her ring slipped off her finger without her realizing it. रास्ते में उन्हें नाव से एक नदी पार करना पड़ा। गहरी नीली नदी की गहरी नीली पानी से आकर्षित होकर के शकुंतला पानी में अपनी उंगलियों को घुमाने लगी और उसकी अंगूठी उसके अंगुली से उसे बिना पता चले ही, बिना महसूस हुए ही नीचे फिसल गई, पानी में गिर गई। Arriving at Dushyant's court, Shakuntala was hurt and surprised when her husband neither recognized her nor recollected anything about her. Arriving at Dushyant court, दुष्यंत के राज दरबार में पहुंच करके शकुंतला को बहुत धक्का लगा और आश्चर्य हुआ जब उसके पति न तो उसे पहचान सके और न ही उसके किसी बात को याद कर सके। यानी राजा पूरी तरह से उसे भूल चुका था, राजा को उसकी एक बात भी याद नहीं थी। Disheartened, Shakuntala came back to the forest and started living the memories of her husband. Disheartened Shakuntala, दुखी शकुंतला जंगल में वापस लौट आई और अपने पति की यादों के साथ अपना समय बिताने लगी, जंगल में ही रहने लगी। After some time, she gave birth to a beautiful child. She gave him the name of Bharat. Bharat grew up without any human company other than that of her mother. कुछ समय के बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम भरत रखा। भरत कि बिना किसी अन्य साथी यानी किसी भी मानवीय साथी के बिना ही बड़ा हुआ, यानी अपनी माँ को छोड़ करके उसने किसी भी मानवीय प्राणी को नहीं देखा। ऑल राउंड इन द जंगल ही encountered wild animals, plants and trees. He developed into a fearless, healthy and active child. Lions and tigers were his friends and he used to ride them as we ride horses. The mother taught him as a prince should be taught skills in archery and use of other weapons, and also acquainted him with scriptures, Vedas, Upanishad. Bharat soon grew up as handsome, intelligent and fearless youth. All round in the jungle, पूरे जंगल में वह जंगली जानवरों, पौधों और वृक्षों के साथ मुलाकात होते रहती थी। वह एक निर्भीक बच्चे के रूप में विकसित हुआ, बड़ा हुआ। वह स्वस्थ और बिल्कुल ही एक्टिव यानी चंचल बच्चा था। शेर और बाघ उनके मित्र थे और वह
हाथ घोड़े की तरह, जैसा कि हम लोग घोड़े की सवारी करते हैं, उसी तरह से वह इन सबों की सवारी भी किया करता था। माँ ने उसे सिखाया एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में उसे सिखाया। एज ए प्रिंस शुड बी टाउट, एक राजकुमार के रूप में उसे सिखाया। स्किल्स इन आर्करी, धनुर्विद्या में निपुणता दी। एंड यूज ऑफ अदर वेपन्स, और अन्य हथियारों के उपयोग के बारे में भी बतलाया। एज ऑल्सो एक्वेंटेड हिम विथ स्क्रिप्चर्स, और उन्होंने अभिलेखों से भी परिचित कराया, जैसे वेद और उपनिषद का भी ज्ञान दिया। भरत शीघ्र ही एक सुंदर, बुद्धिमान और निर्भीक युवक के रूप में बड़ा हो गया। Meanwhile, a fisherman was astounded to find a royal ring in the belly of a fish he had caught. Recognized the royal seal, he took the ring to the palace. On perceiving the ring, King Dushyant remembered Shakuntala and their marriage. इसी बीच एक मछुआरा को meanwhile a fisherman was astounded to find a royal ring in the belly of a fish he had caught. इसी बीच एक मछुआरा को राजघराने की अंगूठी एक मछली के पेट से मिली, जिसे वह पकड़ा था। रिकॉग्नाइज द रॉयल सील, रॉयल सील यानी उस पर लगे हुए राजघराने की मुहर, शाही परिवार की मुहर को पहचान करके वह जो है राजमहल ले गया, उस अंगूठी को राजमहल ले गया। ऑन परसीविंग द रिंग, किंग दुष्यंत रिमेंबर्ड शकुंतला एंड देयर मैरिज। उस रिंग को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला और उनकी शादी का याद आ गया। ही इमीडिएटली सेंट हिज ट्रूप्स टू द हर्मिटेज ऑफ सेज कानवा। He also joined them. Arriving at Shakuntala's father's ashram, Dushyant found that she was no longer there. He continued deeper in the forest to find his wife and came upon a surprising scene in the forest. A young boy had opened the mouth of a lion and was busy counting its teeth. Dushyant was surprised to see so courageous a boy. He approached him and asked his name. He politely replied that he was the son of King Dushyant and Shakuntala. His name was Bharat. He immediately sent it. उन्होंने शीघ्र ही ऋषि कनवा के पास सैनिकों की एक टोली उनकी कोठिया में भेजी। वह भी उनके साथ हो गए, यानी साथ में वो भी गए। शकुंतला के पिता के आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत ने पाया कि वह वहाँ नहीं थी। वह जो है जंगलों में अपनी पत्नी की खोज के लिए घूमते रहे। एंड केम अपॉन ए सरप्राइजिंग सीन इन द फॉरेस्ट, और जंगल में एक आश्चर्य करने वाला दृश्य उन्हें दिखाई दिया। एक छोटा सा लड़का शेर की मुंह को खोल रखा था और उसकी दांतों को गिन रहा था। दुष्यंत को इतना साहसी बालक देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह उसके पास पहुंचे और उनसे उनका नाम पूछा। वह विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि वह राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। एंड हिज नेम वाज, और उसका नाम भरत था। दुष्यंत वाज डिलाइटेड टू नो दैट हिज सन वाज सो ब्रेव। ही एंटर्ड द हर्मिटेज एंड ग्रीटेड द सेज। दुष्यंत यह जानकर के बहुत खुश हुए कि उनका पुत्र इतना बहादुर था। वह कुटिया में पहुंचे और ऋषि को प्रणाम किए। आफ्टर ब्लेसिंग हिम, सेज कनवा हैंडेड ओवर शकुंतला टू हिम। आशीर्वाद दे करके ऋषि कनवा ने शकुंतला को उन्हें सौंप दिया।
Sage Kanwa then explained why Dushyant forgot शकुंतला। तब साधु कण्वा ने व्याख्या किया कि क्यों दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। Later, Bharat became the king of ancient India. He ruled extended over vast area, almost all over the world. Righteousness and justice prevailed everywhere. There was no want, no misery, no any disease in his kingdom. बाद में भरत प्राचीन भारत के राजा बने। उनका शासन दूर दराज के इलाकों तक सुदूर तक फैला हुआ था। लगभग पूरे भारत में सहिष्णुता और न्याय सभी जगह प्रचलित थी। धर्म का सभी जगह बोलबाला था। देयर वाज नो वन, कोई कमी, कोई कंजूसी और राज्य में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। सभी लोग खुशी से जी रहे थे उनके राज्यकाल में। बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी।